क्या ईसॉप्स का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी जी ने दिया था? Was it so that corporate social responsibility as it is known today was clearly spelled out in his writings by Mahatma Gandhi ji? If I tell you that the brand value in terms of rupees crores of the charkha, which was propagated as a symbol, would be around 100 crores in 90s, 50s and 60s? Is it surprising enough to believe that Dandi March, which was a satyagraha with Gandhi ji did, was one of the best PR movements of that time? शायद हम लोग के लिए गांधी जी is an idol when it comes to the best behavior in normal day-to-day situations. लेकिन very few of us know and believe that Mahatma Gandhi ji is an idol and a role model when it comes to management principles. वो principles जो एक entrepreneur को या फिर एक small businessman को बड़े businessman को पता होने चाहिए और day to day business में apply करने चाहिए, वो principles गांधी जी की writings and philosophy से बहुत clearly spell out होते हैं. People don't know that the man who was born on 2nd October 1869 could be termed as one of the best management gurus of the entire world. हम सबको ये पता है कि गांधी जी was born on 2nd October 1869 in an area called Porbandar in Gujarat. लेकिन very few of us know that when he was 45 years of age in 1915, he came back to India when he was already a very successful practitioner and activist on the request of another social activist, a great leader of India named Gopal Krishna Gokhale. And India आने के बाद when he was entrusted with the responsibility to craft a strategy to drive British out of India, Gandhiji decided to spend years traveling lengths and breadths of the country to understand the lives of farmers, people who work in different industries and factories, people who are rich enough to be industrialists, and people who do menial jobs. गांधी जी ने इनफ टाइम स्पेंड किया टू ट्राई एंड नो कि लोग क्या चाहते हैं और लोगों के बिलीव्स क्या है, एंड देन ही क्राफ्टेड सच एन एक्सीलेंट स्ट्रेटजी दैट वी कुड ड्राइव ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया इन 1947. 5 master stroke principles which Gandhiji taught us and are very relevant for a young entrepreneur like you or a small businessman like you. आप कोई भी बिजनेस करें, आप जॉब भी करते हो, अगर ये 5 प्रिंसिपल्स को आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी मोर सक्सेसफुल देन यस्टरडे इन योर ओन फील्ड एंड प्रोफेशन. गांधी जी के वो 5 प्रिंसिपल्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें बहुत ही फायदा होता है. नंबर 1, द गोल्डन रूल ऑफ पीआर: विस्पर योर मूव इन द ईयर्स ऑफ योर अपोनेंट. Dandi March, which is known as one of the most powerful, non-violent, non-cooperation civil disobedience movements across the world, was something which Gandhiji had decided to move. Dandi March was moved because Gandhiji wanted to fight against the salt tax which the British had imposed on the public of India. British government ने ये किया था कि they had kept a monopoly in the manufacture and sale of salt. On the other hand, they had also kept a tax on salt. आइटम ऑफ कॉमन यूज है सॉल्ट. अगर आप उस पर टैक्स लगाएंगे तो गरीब लोग खाएंगे क्या? एंड दिस टैक्स अमाउंटेड टू 8.2% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द ब्रिटिश एज टैक्स रेवेन्यू. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये सॉल्ट टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था. गांधी जी को क्या लगा कि ही वांट्स टू फाइट अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स, एंड सॉल्ट इज एन आइटम ऑफ कॉमन यूज. The best strategy to fight British when such an item is considered is a mass civil disobedience movement. क्योंकि हर एक बंदा सॉल्ट से रिलेट कर पाएगा, तो अगर सारे लोगों को कहा जाए कि हम आपकी नमक के लिए फाइट कर रहे हैं, तो पीपल वुड डेफिनेटली फिल इन द रोड्स एंड डू दैट सत्याग्रह फॉर हिम. उन्होंने ये सत्याग्रह करने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया. ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने के कारण और मीडिया के अपने रिलेशंस के कारण एवरीवन केम टू नो दैट गांधी जी इज गोइंग टू डू अ सत्याग्रह अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स इन इंडिया. गांधी जी का काम हो गया. उनको सारे देश को बताना था कि ऐसा एक मूवमेंट गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है और आप सब लोगों को अपने अपने एरिया में ये मूवमेंट को सपोर्ट करना है. जैसे ही ये मूवमेंट शुरू हुआ, जैसे ही दांडी मार्च स्टार्टेड इन अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया, ब्रिटिश लोगों ने गांधी जी को और गांधी जी के अकम्पनीमेंट्स को जेल में डाल दिया. इससे कुछ फर्क नहीं हुआ. Why? Because पूरे भारत में डिफरेंट स्मॉल पॉकेट्स में सब लोग इस सॉल्ट टैक्स के सामने मोर्चा धरकर बैठे हुए थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट की जेल्स भरने लगी. कितने लोगों को वो जेल में डालेंगे? इवन व्हेन गांधी जी वाज केप्ट इन द जेल फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, द मूवमेंट कंटिन्यूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विथ मोर विगर, क्योंकि सबको लग रहा था कि गांधी जी इज आवर लीडर एंड आवर लीडर इज सिटिंग इन जेल.
वन ऑफ द एक्सीलेंट स्ट्रेटेजीज इन पब्लिक रिलेशंस कि आप अनाउंस ही कर दो कि आप ये करने जा रहे हो। एज अ कॉन्सिक्वेंस आपके कॉम्पिटिटर के पास रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं रहेगा, ही विल रिएक्ट, एंड एज एंड व्हेन ही शी रिएक्ट्स शायद आपको फायदा होगा, बिकॉज दैट रिएक्शन वुड नॉट बी अ वेल थॉट ऑफ मूव। एग्जैक्टली सेम गांधी जी ने किया। उन्होंने मीडिया अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट को चमकाने के लिए, प्लस एक मैसिव फैन फॉलोइंग को पूरी दुनिया से अक्यूमुलेट करने के लिए ये पहले ही अनाउंस कर दिया कि मैं दांडी मार्च करने जा रहा हूं साइलेंटली। आपको अगर मुझे पकड़ना और जेल में डालना हो तो डाल देना। प्रिंसिपल नंबर 2, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एक बहुत ही सिंपल रूल है। योर ब्रांडिंग शुड बी विजिबल, रिपीटेबल एंड सिंपल। फिर से मेरे साथ बोलिए, विजिबल, रिपीटेबल एंड सिंपल। गांधी जी ने अपने लिए क्या पोशाक पसंद की? व्हाट डिड गांधी जी यूज्ड टू वेयर? गांधी जी यूज्ड टू वेयर अ सिंपल व्हाइट धोती। जहां लोग सूट बूट पहनते थे वहां गांधी जी ने सूट बूट को निकालकर धोती पहनना शुरू कर दिया। धोती हैज व्हाइट कलर एंड धोती हैज अ डिस्टिंक्ट पैटर्न। सूट बूट से घिरे हुए लोगों में गांधी जी बहुत क्लियरली दिख जाते थे। दैट इज विजिबिलिटी। आपकी ब्रांड क्लियरली दिखनी चाहिए अमॉन्ग्स्ट द मासेस एंड अमॉन्ग्स्ट द क्राउड। बहुत सारा नॉइज हो तो भी अगर आपकी ब्रांड दिखती है, देन योर ब्रांडिंग इज अप्रोप्रिएट। ब्रांडिंग का दूसरा प्रिंसिपल, रिपीटेबल। गांधी जी ने धोती इसलिए पहनी क्योंकि रोज वो धोती पहनना बहुत ही कन्वीनियंट था। इट वॉज इजी टू मेंटेन, इट वॉज अफोर्डेबल एंड इट वॉज कन्वीनियंट। उन्हें नेक्स्ट डे क्या पहनना चाहिए, वो गंदा है, अच्छा है, इस्त्री किया हुआ है कि नहीं, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता था। एंड सो ब्रांड शुड बी सच दैट द ब्रांडिंग शुड बी रिपीटेबल इन द अकरेंसेस इन विच यू वांट द ब्रांड टू रिपीट योरसेल्फ। अगर आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया में अपना ब्रांडिंग करना है, अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन करना है, अगर आपको इंडिया में या आउटसाइड इंडिया करना है, अगर आपका ब्रांडिंग जितना रिपीटेबल होगा उतने आपके एफर्ट्स कम लगेंगे, पैसा कम लगेगा और लोगों को एक कंटिन्यूटी दिखेगी एज फार एज योर ब्रांड इज कंसर्न। एंड द थर्ड प्रिंसिपल, विजिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, सिंप्लिसिटी। आपका ब्रांडिंग सिंपल होना चाहिए। गांधी जी का ब्रांडिंग की वैल्यू इसीलिए थी क्योंकि उन्होंने जो धोती सिलेक्ट किया था वाज वेरी सिंपल। इट रेजोनेटेड विद द कॉमन मैन एंड बिकॉज ऑफ दिस सिंप्लिसिटी सर विंस्टन चर्चिल उनको हाफ नेकेड फकीर बुलाते थे। लेकिन जब वो हाफ नेकेड फकीर बुलाए गए, उनकी ही ब्रांडिंग, उनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई एज कंपेयर टू ऑल द ब्रिटिशर्स हु आर वेयरिंग सूट्स एंड बूट्स। अगर आपको लोगो डिजाइनिंग के लिए कोई मास्टर क्लास चाहिए, मुझसे मत लेना, कोई एजेंसी, कोई टीचर से मत लेना, इंस्टेड महात्मा गांधी जी से लेना। क्योंकि गांधी जी ने जो चरखा एज अ ब्रांड सिंबल सिलेक्ट किया था इज वन ऑफ द बेस्ट लोगोज विच यू कुड सिलेक्ट. That logo had a lot of elements into it. Charkha had Indianism as an element, common manism as an element, women empowerment as an element, self-sufficiency, self-reliability as an element. गांधी जी का ये स्टेटमेंट बहुत ही पावरफुल था कि for every minute I spin the charkha, I have a consciousness that I am adding to the nation's wealth. This is exactly what Gandhiji wanted to communicate to every Indian. If every Indian joins his non-violent movement, then we'll be able to drive out British because the power of Indians was at that time also in hundreds of crores. इस विजन को कम्युनिकेट करने के लिए ही टुक चरखा एज अ लोगो कि हर एक मिनट जैसे मैं चरखा को बुनता हूं मुझे लगता है कि मैं नेशन की जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं. गांधी जी ये बताना चाहते थे कि एवरी पर्सन ऑफ एवरी क्लास, मे इट बी मेल, मे इट बी फीमेल, शुड कंट्रीब्यूट टू द नेशंस डेवलपमेंट इन सम वे. एंड इफ यू डोंट थिंक दैट एनी अदर वे इज गुड फॉर यू, एटलीस्ट स्पिन अ चरखा. हम लोग सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे व्हेन इट कम्स टू क्लॉथ्स एंड वी विल शो दैट वी आर वेयरिंग इंडियन क्लॉथ्स एंड देयर इज इंडियननेस on our sleeves. तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लोगो डिजाइन कर रहे हैं तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर स्पेंडिंग लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीस आल्सो शायद आपको अपने लोगो से इतना सेटिस्फैक्शन ना हो और लोग आपके लोगो के साथ रिलेट ना कर पाए. एवरी लोगो शुड हैव अ स्टोरी. एवरी लोगो शुड बी सिंपल. आप ये चेक कीजिए कि आपके जो कोर वैल्यूज है वो आपका लोगो कैसे लोगो तक ले जा रहा है. Your logo should be able to communicate your vision and core values to the people, and that's it. Golden statement. Your logo should communicate your core values and your vision to the people. This is the best logo you can design for your organization. Principle number 3, clarity of vision. Outcomes over procedures. गांधी जी एक स्पष्ट बात में मानते थे. गांधी जी को ब्रिटिश की नस नस पता चल गई थी और उन्हें यह पता था कि ब्रिटिश कैन नॉट बी डिफीटेड बाय फोर्स. हमारे पास इतना पावर ही नहीं है कि हम फिजिकली फाइट करके ब्रिटिश को यहां से बाहर निकाल पाए. इसलिए उन्होंने एक माइंड गेम करने का सोचा. ही डिसाइडेड टू डू द मास्टर स्ट्रोक ऑफ नॉन वायलेंस. उनको लगा कि अगर नॉन वायलेंट मैनर में ब्रिटिश से नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट चलाएंगे तो डेफिनेटली ब्रिटिश वुड गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड दे वुड गो आउट ऑफ द कंट्री. गांधी जी के लिए एक चीज बहुत क्लियर थी. फॉर मी द सोल्यूशन मैटर्स, फॉर मी द गोल मैटर्स, फॉर मी द आउटकम मैटर्स, नॉट द प्रोसीजर.
गांधी जी को ये लग रहा था कि एवरीवन इज गोइंग ऑन वे ए, even if I go through way B, if I am getting success which is driving British out of India, I am successful. आजकल a lot of employees will go and complain to their bosses कि मेरा ये नहीं चल रहा है, मुझको ये नहीं आ रहा है, ये टूल बराबर नहीं है. Always remember a bad workman blames his tools. अगर आप खुद भी ये कर रहे हो तो मत कीजिए. आपका एम्प्लॉयर या अगर आप खुद बिजनेसमैन हो तो योर कस्टमर वुड बी कंसर्न ओनली अबाउट द सॉल्यूशन और द आउटकम्स. आपको प्रोसीजर पे फोकस करना बंद कर देना है एंड यू हैव टू फोकस ओनली ऑन आउटकम्स इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ. आपको विजन की क्लैरिटी होनी चाहिए एंड दैट क्लैरिटी ऑफ विजन वुड ड्राइव यू टुवर्ड्स योर गोल्स. आप कौन सा रास्ता चुनते हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. आई विल गिव यू अ स्टेटमेंट. आपको ये याद रखना है कि एवरी रोड विल टेक यू टू योर डेस्टिनेशन इफ यू हैव द विल पावर टू गो अहेड इन दैट रोड. आपका हर एक रास्ता आपको डेस्टिनेशन तक ले जाएगा अगर आपके पास विल पावर है कॉन्स्टेंटली चलते रहने की ऑन दैट पर्टिकुलर रोड यू सिलेक्टेड. दैट इज व्हाट गांधी जी टॉट एंड आई एम जस्ट रिप्रोड्यूसिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू. प्रिंसिपल नंबर 4, मेक योर एम्प्लॉय द बॉस ऑफ योर बिजनेस. गांधी जी ने एक प्रिंसिपल दिया था जो वेरी मच वेल नोन है बाय द नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप. गांधी जी ने ये बताया था कि द वर्ल्ड शुड स्ट्राइव टू बी अ प्लेस वेयर एवरीवन इज ऑन द सेम फुटिंग. मे इट बी एन एम्प्लॉयर और एन एम्प्लॉय, मे इट बी अ वेल्दी और अ नॉट सो वेल टू डू, एंड मे इट बी अ प्रिंस और अ पेजेंट. मतलब एक शहजादा या फिर एक किसान, एक धनवान व्यक्ति या फिर एक गरीब. Everyone should be at a common footing for the world to succeed. ये प्रिंसिपल हम शायद गांधी जी के बाद थोड़ा सा भूल गए थे, लेकिन आज ये प्रिंसिपल हमको सक्सेस की तरफ ले जा रहा है. इफ यू सी एवरी सक्सेसफुल स्टार्टअप हैज एन ESOP scheme for employees. The promoters are keeping around 10% of their shares in the ESOP pool so that employees are enough motivated and they are also invested into the business. Employee को लगना चाहिए कि मैं सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इस धंधे का मालिक हूँ. Then and then only the progress can be governed. Even the concept of corporate social responsibility, which was like very recently 10 years back promulgated by companies like 2013 in India, is based on Gandhiji's principle of trusteeship. If a business earns a lot of money, then it is only a trustee of that money and it's the responsibility of the business and the businessman to distribute it among the needy sections of the society. Corporate social responsibility and ESOPs are both of those concepts which Gandhiji taught us back in 1900s. पांचवा और आखिरी प्रिंसिपल, SWOT analysis. गांधी जी वॉज अ मास्टर ऑफ SWOT एनालिसिस. हम सबने SWOT एनालिसिस के बारे में सुना है. आप शायद वीडियो बंद भी कर सकते हैं बट मत करना, क्योंकि SWOT एनालिसिस हमें लाइफ में करना आया ही नहीं. Let me take Gandhiji's example. गांधी जी का SWOT analysis कुछ ऐसा दिखता था. Strengths, he was able to see that we are a big nation and the population here if comes together can make a difference. In weakness, he was able to see that because the nation has a lot of diversity, if people are distributed in their efforts, हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी. Opportunity, every autocratic move, जो भी एक्सप्लॉयटेशन वाला मूव ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, गांधी जी अंडरस्टूड दैट इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू फाइट बैक. And threat, the time. He knew that the non-violence, non-cooperation methodology which he's propagating is going to take a lot of time, and this time is a threat because लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे and may be difficult for every time the nation to bind together and move ahead. गांधी जी का इतना क्लियर SWOT एनालिसिस था, and because Gandhi ji had such a hold over his SWOT analysis, he took every possible step in strategy to ensure that his non-violent, non-cooperation movement becomes successful. I'll give you a lot of examples. उनको पता था कि शायद लोग ये एफर्ट में बिखर जाएंगे, इसलिए उन्होंने सबको एक साथ लाने के लिए चरखा सिंबल को प्रोपोगेट किया. उन्हें ये भी पता था कि उनका मैसेज लोगों तक पहुंचना उन टाइम बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए डांडी मार्च करने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता दिया, जिससे मीडिया को पता चल जाए. उनके मीडिया के साथ रिलेशंस भी बहुत अच्छे थे, and hence when media brings things to public, people know that hey, Gandhiji is leading that thing and I want to be a part of it. And he knew that the non-violent, non-cooperation methodology which he is adopting is going to take time, so he mastered the strategy of responding to every autocratic move of the British government by either a satyagraha or writing an opinion on the public matter or addressing the people out of the jail on that matter, so on and so forth. He used to be in touch with the people to know the sense of the people and to keep people together in this thread of non-violence and non-cooperation, so that whenever British government would come up with a strategy to push people back, these people would come up with double force and push the government back on their intentions. As a consequence, British government frustrated हो गई, and out of this frustration we could move them out of India in 1947. तो अगर आप मुझे समरी में पूछेंगे तो शायद उल्टे से देखते हैं.
सबसे पहले अच्छा सा स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस करने के बाद वी शुड हैव अ क्लैरिटी ऑफ विजन कि द आउटकम्स आर मोर इंपॉर्टेंट नॉट द प्रोसीजर्स। हमारा विजन जो है वो हमारी ब्रांड लोगो की तरफ से कम्युनिकेट होना चाहिए टू अ लॉट ऑफ पीपल विदाउट अ लॉट ऑफ वर्ड्स। ये जो कम्युनिकेशन हुआ वो कम्युनिकेशन मतलब कि ब्रांडिंग 3 पिलर्स पे होना चाहिए, विजिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। एंड विथ ऑल दीज एफर्ट्स ऑफ ब्रांडिंग आपका पीआर इतना एक्सीलेंट होना चाहिए कि व्हेनेवर यू मेक अ मूव द अदर पर्सन नोज दैट यू आर मूविंग बट ही डज नॉट गेट द टाइम टू रिस्पॉन्ड, ही जस्ट गेट्स द टाइम टू रिएक्ट एंड ही गोज रॉन्ग। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आउट ऑफ दीज 5 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको सबसे ज्यादा रेलेवेंट कौन सा लगा। कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिए, वी रिस्पेक्ट यू गांधी जी एंड वी लव यू गांधी जी, सो दैट ऑन 2 October 2023 दैट इज हिज बर्थडे गांधी जयंती वी पे आवर रिस्पेक्ट्स टू द बेस्ट मैनेजमेंट गुरु इन द वर्ल्ड। आपको शायद वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड तक वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। ये वीडियो आपके सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ स्प्रेड कर दीजिए सो दैट दे आर आल्सो अवेयर अबाउट द मैनेजमेंट माइंडसेट ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी वाज अ ग्रेट फिगर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ गांधी जी, आई मस्ट से, बट वी शुड लर्न एज मच एज वी कैन फ्रॉम महात्मा गांधी जी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमारा बहुत फायदा होता है। थैंक यू।